I am Vedant Joshi, teaching in BFS Gurukul Gondal, welcoming you all to my channel. Okay, so as you can see in your screen, we were discussing about chapter number 5, India's heritage in the field of science and technology. See, you already know we have completed few different topics of this chapter. So first of all, we will revise that, and then after we will move on. Okay, so let us have a quick look at the topics which we have completed. The metallurgy portion, chemistry and science of medicine and surgery. These three topics we have completed. Okay, and these three topics are remaining. So today we are going to conclude this chapter. And by the way, if you haven't watched that first lecture, okay, part 1 of this chapter, then you can go and watch. Link is already given in the description box. Okay, so first of all we have studied about the introduction, then after what does exactly science means, the systematic knowledge, technology means what, it's a implementation of that systematic knowledge. Then beside that we have studied that our Indians have not only contributed in the literature, art, religion, education, philosophy, etc., but we have also equally contributed in the astronomy, astrology, vastu shastra and physics. Okay, then after moving on towards the metallurgy, the first topic of our chapter. In that we have studied that many different metallic idols have found from the different places. It indicates how great our ancestors were. They were having a very great skill of making or using the different metals and making the idols out of it. See, first one, that is the metallic idol of female dancer. Then after statues of Gautam Buddha belonging to the Kushan period. Then after statue of Nataraj, statue of Ram the archer. Okay, these all things we have covered in the metallurgy portion. Then after chemistry. So chemistry is an experimental science. Then after at which different places chemistry is used in agriculture. Then after in making medicines. Okay, then in making the various metals and to bring changes in them. Then the Acharya Nagarjuna, who is a very learned Buddhist of the Nalanda University in the field of chemistry. He has written 2 books, namely Ras Ratnakar and Arogya Manjari. Then after copper statues of Gautam Buddha, which was found from the Bhagalpur district, which is weighing 1 ton and its height is about 7 feet. Another statue of Gautam Buddha, which is found from Nalanda, weighs 7 tons. Sorry, weight is not given here, just the height is given, 18 feet. Okay, and then after Vijay Stham, which is 24 feet high, weight 7 tons, built by the Chandragupta II. So this all represents how great our ancestors were in the field of chemistry also. Then after science of medicine and surgery, in that I have told you, you have to remember 3 different names, that is Maharshi Charak, Maharshi Sushrut and Vagbhat. Maharshi Charak contributed in the field of medicine, Sushrut in the field of surgery and Vagbhat in the field of veterinary science. Okay. So Maharshi Charak has written a book named Charak Samhita, in which he has described about 2000 medicinal herbs. Maharshi Sushrut has mentioned a sharp instrument used in the surgery. These instruments were so sharp that they could cut a vertical hair into 2 divisions. Then after Vagbhat Samhita, okay, Vagbhat Samhita is also a very important book in the field of science and surgery. Okay, then after study of Charak Samhita, Sushrut Samhita, Vagbhat Samhita is useful for every doctor. Moving on, we have studied that they were having great knowledge of operating abdomen, kidney, cataract, hernia, stone piles, etc. Okay, they could even stop blood circulation with bowl-shaped bandages. So these many skills our ancient ancestors were having. Then after even plastic surgery, okay, they were knowing the skill of plastic surgery. They used to join nose and the ears. Okay, then they were not only just practicing, or you can say they were not just only keeping their knowledge with themselves. Okay, they were also giving that knowledge. They were also keen in giving that knowledge to the students. Okay, और किस तरह से वो knowledge pass on करते थे, by doing the surgery on the dead bodies or wax statues. Then after they were expert gynecologists and pediatricians also, that also we have studied. Then different books, okay, written on the diseases of the animals also by Vagbhat. उसके बारे में हमने पढ़ा था, हस्ती आयुर्वेदा, शैलीहोत्रा, अश्वशास्त्र, etc. These all are the different books which are written on the diseases of the animals. So Vagbhat have also contributed equally in the field of science and surgery. So यहाँ तक हमने पढ़ा था, and then after 3 topics are remaining, that is mathematics, astronomy, astrology and vastu shastra, and then after the conclusion. So let us start with that. First of all, mathematics. See,
Many epoch-making mathematical discoveries were considered to be made in India, through which contemporary global efforts are carried out. Many epoch-making mathematical discoveries are considered to be made in India. Epoch-making, you can say a change of era. Okay, epoch-making मतलब पूरे युग को बदल देना. उसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऐसा होता है. ओके, सो मेनी epoch-making changes. यहाँ पर तो इसका सिंपल मीनिंग ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत बड़े चेंजेस. ओके, were made in India in the field of mathematics. The gift of India to the world are discovery of zero, the decimal system. Yes. Okay. 2 के बाद 3 आता है, उसके बीच में 2.1 भी होता है, 2.5 भी होता है, 2.7 भी होता है. तो डेसिमल सिस्टम जो है वो भी इंडिया ने ही दिया था. देन आफ्टर जीरो, कुछ ना देते हुए भी इंडिया ने सब कुछ दे दिया. एंशिएंट में अगर आप देखो तो रोमन कल्चर में उनको सिर्फ काउंटिंग आती थी 1 to 9 तक. उसके बाद 10 को कैसे रिप्रेजेंट करें उनको नहीं आता था. तो उन्होंने क्या किया, वापस से यहाँ पर ऐसे स्टार्ट कर दिया, एक्स का सिंबल. ओके, फिर 11 को लिखना हो तो ऐसे, फिर 12 को लिखना हो तो ऐसे, फिर ओके. तो ऐसे ही उन लोगों ने नंबर्स को लिखना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उनको नहीं आता था कि 9 के बाद 10 कैसे लिखा जाए. जीरो तो अब तभी तक था ही नहीं. तो द डिस्कवरी ऑफ जीरो वॉज मेड इन इंडिया, यू ऑल नो, by Aryabhatta. Okay, then decimal system, algebra, theorem of Bodleian, geometric, arithmetic. Okay, all this kind of the, you can say, things were contributed by the Indians in the field of the mathematics. So first of all, Aryabhatta discovered zero. The process of writing zero after figure was discovered by the sage named Grutsamvad. Yes. See, the process of writing zero after the figures, मतलब कितना, तो 1 के आगे 0 लगा दो, 1 0 लगा दो तो 10, 2 लगा दो 100, 3 लगा दो तो 1000, 4 लगा दो तो 10,000, 5 लगा दो तो लाख. ओके, देन 6 तो करोड़. उसके आगे मुझे नहीं आता है, बस इतना ही. ओके, तो 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, अप टू व्हाट, अप टू 53 zeros. ओके, अगर हमको कोई बोले तो कितने तक हमें पता होगा. ओके, 1 के बाद 1 0 लगा दो, 2 3 4 5, मैंने बोला ना अप टू 8 9 10 11 12, चलो उतने तक हम बोल देंगे. लेकिन ग्रुत्समवद, ओके, प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरोस आफ्टर फिगर, उन लोगों ने 1 के बाद 53 जीरोस तक के नाम सोच कर रखे थे. कैन यू इमेजिन दैट? ओके, 53 जीरोस आफ्टर 1. उनके नेम्स अभी तक, मतलब आप देखो तो मिल जाएंगे आपको. मुझे तो इतना ज्यादा 53 जीरोस तक तो किसी को याद नहीं हुआ, मुझे तो क्या, बट इतने एंशिएंट पीरियड में थे नेम्स. ओके, 53 जीरोस आफ्टर 1. तो इतने ग्रेट थे हमारे एंसेस्टर्स. यू कैन इमेजिन बाय दैट. See, the ancient Indian mathematics have decided the names of numbers made up by placing 53 zeros after 1. और ये प्रोसेस स्टार्ट किसने की थी? ग्रुत्समवद ने. ओके, the process of writing zeros after the figure, it was started by Grutsamvad. And this you all know, Aryabhatta discovered the zero. If you want you can learn, otherwise no need. अगर ये पता ना हो तो सोशल भी मत पढ़ना, साइंस भी मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना. ओके, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल मत पढ़ना. Decimal system has been seen for measuring and weighting instrument which has been found from the remains of the Harappa and Mohenjo-daro. अच्छा, तो इसका भी प्रूफ है हमारे पास कि डेसिमल सिस्टम्स यहाँ पर इंडिया में थी. ओके, प्रैक्टिकल यूज भी होता था उसका. वेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हरप्पा और मोहनजोदारो. अभी हरप्पा और मोहनजोदारो क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक. ओके, इट्स मोहनजोदारो. ये दोनों टाउन्स है. ओके, टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा एंड मोहनजोदारो. तो वहां से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पर डेसिमल सिस्टम्स का यूज होता था. अगर आप देखो तो अर्लियर टाइम में वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पत्थर यूज होते थे. ओके, 1 kgs के, 2.5 kgs के. अभी भी आप कहीं पर जाओ शॉप पर तो आपको दिख जाएंगे शायद, ओल्ड एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेजरिंग द, और यू कैन से वेटिंग द डिफरेंट थिंग्स. सो इट वाज फाउंड फ्रॉम हरप्पा एंड मोहनजोदारो. ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा आप फोकस करना. मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको क्या याद रखना है. सी, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स वाइज आपको डिवाइड कर दिया. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर डिफरेंट मैथमेटिशियंस, द नेम ऑफ डिफरेंट मैथमेटिशियंस एंड विच थिंग्स they have discovered, okay, or in which way they have contributed in the field of mathematics.
ये आपको याद रखना है, बस सिर्फ यही चीज आपको याद रखनी है। आइदर यू जस्ट मेक वन टेबल, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है, ऐसा एक मतलब टेबल नहीं तो यहाँ पर एक पॉइंट्स बनाए हुए, आप टेबल बना सकते हो। ओके, in the left hand side you just write the name of the mathematicians, and on the right hand side you just write the discoveries which they have made or the contributions which they have made in the field of the mathematics. So let us start with that. आर्यभट्ट यहाँ पर लास्ट में है, उससे पहले मैं बता देता हूँ। डिस्कवर्ड द जीरो, ये आपको पता है, एक ये हो गया आर्यभट्ट हो गया, दूसरा है भास्कराचार्य। ओके, भास्कराचार्य हैज रिटन टू बुक्स नेमली लीलावती गणित एंड बीजगणित इन 1150। ही डिस्कवर्ड द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये एडिशन और साइन जो है 50 प्लस 50 ऐसा, मतलब कोई भी ले लो नंबर, तो ये जो प्लस की जो साइन है या फिर माइनस की, ये कैसी होनी चाहिए, ओके, ये किसने बताया था, तो भास्कराचार्य ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन आफ्टर ब्रह्मगुप्त introduced the different types of equations. Okay, Brahmagupta introduced different types of equations. Bodhian discovered the theorem triangle policy. Bodhian theorem उसको कहा जाता है। Abstamba discovered the measurement of sacrificial pits, मतलब जो हवन कुंड होते हैं, ओके, यज्ञ वेदीज उसको कहा जाता है, हवन कुंड, उसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, ये अपस्तंभा ने बताया था। ओके, अपनी बुक में शुल्वा सूत्रास, ये बुक का नाम है, इससे रिलीजियस टेक्स्ट, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट इन 1800 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, सो इट इज it also consists analysis of principles. Aryabhatta had mentioned the value of pi is 3.14 in his book Aryabhatyam. So Aryabhatta also mentioned the value of pi. अगर पाई की वैल्यू आपको ना पता होती, जो आप मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ते हो, ओके, सरकमफ्रेंस का सर्कल वाला जो चैप्टर होता है, वो शायद आप पढ़ ही नहीं पाते, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। ओके, सो द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 3.14, it was given by the Aryabhatta. He propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of the circle. तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, you just have to remember the name of the mathematician, as I have already said, and the name or the contributions which they have made or the discoveries which they have made. बस यही चीजें आपको याद रखनी है। क्विक रिवीजन कर ले हम। ओके, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो, देन आफ्टर उसके बाद अगर आप लिखना हो आर्यभट्ट में तो आप बहुत लिख सकते हो, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, फिर भास्कराचार्य लीलावती गणित एंड बीजगणित, ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बोधियन डिस्कवर्ड द थियरम ऑफ Bodhian or triangle policy, you can say. Abstamba discovered the measurement of sacrificial pits. Then after, at last, Aryabhatta also mentioned the value of pi, which is 22/7 3.14. Then after, moving further on, multiplication, addition, subtraction, square root, cube root, etc. Ashtanga method introduced by Aryabhatta in his work. Hence, Aryabhatta is also known as the father of mathematics. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। See, here generally they are asking a 2 marks question also, और 5 marks question भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा होगा नहीं 5 marks का क्वेश्चन इसमें से। आर्यभट्ट इज नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स। जनरली इस चैप्टर में से 5 marks के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर 2 marks का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना है कि से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन इन 2 marks आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाई? तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्यभट्ट का, वो सभी चीजें आपको लिख देनी है एग्जाम में। एंड एट लास्ट यू कैन कंक्लूड विद दैट, सो फ्रॉम द अबव मेंशन्ड रीजन वी कैन से दैट आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। उनकी जो भी डिस्कवरीज हो, सभी डिस्कवरीज आप लिख सकते हैं। मोरेओवर ही हैड रिटन मेनी बुक्स लाइक दशगीतिका एंड आर्यभट्टियम। These are the books which are written by the Aryabhatta. He had described the principles of astronomy also in his book Arya Siddhant. Astronomy के जो principles, see, besides being a mathematician, Aryabhatta was also a great astronomer that we will study in the portion of astronomy and astrology. He discovered that Earth rotate on its own axis. lunar eclipse जो होता है वो कैसे होता है, वो भी आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर करके दिया था। So Aryabhatta was also a great astronomer beside being a mathematician. तो उसने एस्ट्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स थे
ओके, वो किस बुक में लिखे हुए हैं? आर्य सिद्धांत में। यहाँ पर बहुत सारे आपको एमसीक्यू एज वेल एज जो शॉर्ट आंसर है वो मिल जाएंगे, तो थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन ध्यान से याद कर लेना। He found the solution of fundamentals of mathematics, that is arithmetic and geometry. Apart from this, various aspects of the mathematics have been discussed by many scholars in their books. Among them, the scholar of Bodleian, मतलब कितने सारे मैथमेटिशियन ने कंट्रीब्यूट किया है मैथमेटिक्स की फील्ड में, और सभी आपको मैथमेटिशियंस के नाम याद रखने हैं। दैट इज बोधियन, अपस्तंभा, कटयन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्ट, ओके, अपस्तंभा, तो ये सभी नेम्स आपको याद कर लेने हैं। सो यहाँ पर कंक्लूड कर दिया आपका मैथमेटिक्स का पार्ट। उसके बाद ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Many books were written on various sciences in ancient India also, different fields, साइंस की जितनी भी different fields है, ओके, उसमें कितने सारे ऑथर्स ने कितनी सारी बुक्स लिखी हुई है हमारे सेजर्स और सेंट्स ने। तो सी प्रजनन शास्त्र, ब्रह्मभर्य पांचाल, चिकित्सा संग्रह, चक्रपाणिदत्त, कामसूत्र, वात्स्ययन, देन वक्रशा आयुर्वेद, महर्षि पराशर, योग शास्त्र, महर्षि पतंजलि, यंत्र सर्वासा, महर्षि भारद्वाज, एंड कालंगना, शकमुनि। ये आपको नेम्स याद कर लेने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द बुक्स एज वेल एज नेम ऑफ द ऑथर्स। ये नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स, बस ये सभी चीजें क्या है, तो साइंस की डिफरेंट फील्ड्स है, ओके, उसमें ये बुक्स के नेम है और ये जो है ऑथर्स के नेम। योग शास्त्र मतलब योग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, सभी के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यंत्र सर्वासा, ओके, यहाँ पर डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो होते हैं, यंत्र का शायद आपको पता ही होगा, ओके, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। देन आफ्टर प्रजनन शास्त्र, चिकित्सा संग्रह, कामसूत्र, देन वृक्षा आयुर्वेदा, आयुर्वेद के बारे में महर्षि पराशर ने। तो ये सभी चीजें आपको एकदम से बराबर से याद कर लेनी है। सो लेट्स मूव ऑन विद दैट। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, ये दो टॉपिक या आप बोल सकते हो तीन टॉपिक बस अभी बाकी है। सो एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस, जस्ट अंडरलाइन दैट, एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस। Many works related to astronomy have been written in India. An organized and deep study of astrology was made by the ancient universities. Planets and their movements, constellations तो आपको पता है ना, group of stars, okay, planets and their movements, constellations and other celestial objects used for calculation through which astronomy and astrology were developed remarkably. जो आपको पता ही है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, उसके कैलकुलेशंस में क्या यूज होता है, तो प्लैनेट्स, फिर कॉन्स्टेलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार्स, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर रोमिंग अराउंड अस, ओके, इन द सोलर सिस्टम। सो द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स्टेलेशंस, प्लैनेट्स, ये सभी चीजों की मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है और उसके बेस पर स्टडी होती है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की। सी प्रेडिक्शंस वर मेड ऑन द बेस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स। आर्यभट्ट मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो। ये मैंने आपको बताया था, बिसाइड बीइंग अ ग्रेट मैथमेटिशियन, Aryabhatta was also a great astronomer. So first Indian satellite was named Aryabhatta on his name. आपको पता है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो हमने लॉन्च करी थी आई थिंक 1975 में with the help of Russia, because at that time we were not having the launching vehicles जो GSLV और PSLV है, ओके, लॉन्चिंग व्हीकल्स वो तभी हमारे पास नहीं थे। सो विद द हेल्प ऑफ रशिया वी हैव लॉन्च्ड अवर फर्स्ट सैटेलाइट एंड उसका नाम जो रखा था वो आर्यभट्ट था, बिकॉज आर्यभट्ट वाज आल्सो अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। तो क्या कंट्रीब्यूट किया था आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी में, तो देख लेते हैं। मैंने दो चीजें ऑलरेडी बता दी है, वही सेम चीज है यहाँ पर। He declared that Earth rotates on its own axis and proved that the basic reason of lunar eclipse is the shadow of Earth। जो आपको पता है lunar eclipse चंद्र ग्रहण, ओके, उसका रीजन क्या है, शेडो ऑफ दी अर्थ, अर्थ की जो शेडो है वो मून को कवर कर देती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन चंद्र ग्रहण और ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स। तो ये रीजन जो है वो भी आर्यभट्ट ने ही बताया था, विच इज एड्रेस एज अजय भार बाय द स्कॉलर। सो विच इज द अनदर नेम ऑफ द ल्यूनर एक्लिप्स, अजय भार।
In the same manner, Brahmagupta popularized the law of gravitation in his book Brahma Siddhant. Law of gravitation न्यूटन ने बताया, इससे पहले तो ब्रह्मगुप्ता ने बता दिए थे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रह्मगुप्ता हैज पॉपुलराइज्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। वो वाला न्यूटन का जो लॉ है, ओके, 3 लॉ ऑफ मोशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एस्ट्रोलॉजी, सो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट हमने कंक्लूड कर लिया। एंड देन आफ्टर एस्ट्रोलॉजी, वराहमिहिर वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शन। अच्छा, ये आपको याद रख लेना, तंत्रा, वोरा एंड संहिता, सो 3 डिफरेंट सेक्शंस इन विच एस्ट्रोलॉजी इज डिवाइडेड। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में आपको डिफरेंस पता है? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सी, एस्ट्रोलॉजी जनरली क्या, एस्ट्रोनॉमी तो आपको पता होगा शायद, ओके, जो स्पेस है उसमें जो कुछ भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनकी स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी को क्या कहा जाता है? सी, जनरली एस्ट्रोलॉजी also indicates the study of stars and planets. Okay, it is also a study of planets and star only which are moving in the space. बट उसमें क्या है कि जो प्लैनेट्स है, जो स्टार्स है, उनकी मूवमेंट्स है, हाउ द ह्यूमंस आर अफेक्टेड, ओके, हाउ आवर ह्यूमन लाइफ्स आर अफेक्टेड, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। कई बार आपने सुना होगा इसका मंगल ग्रह भारी है, इस पे शनि की बहुत बुरी दृष्टि है। तो ये सभी चीजें क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ओके, प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट से ह्यूमंस के लाइफ में कौन कौन सी यू कैन से चीजें बदल सकती है, उनके लाइफ में कौन कौन सी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकती है, ऑल दिस थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन एस्ट्रोलॉजी। तो बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, इट्स वेरी सिंपल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग दैट। His Granth named Brihad Samhita gives information regarding the effects of planets on man's future, his characteristics, various classes of animals, the time of marriage, ponds, wells, gardens and good omen. Omen मतलब अच्छा समय, okay, good omen, शुभ मुहूर्त, for sowing। ये सभी चीजें उसमें डिस्क्राइब की हुई थी बृहद संहिता में, मतलब कब आपको मैरिज करने चाहिए, कौन सा अच्छा मुहूर्त मैरिज करने के लिए, देन आफ्टर कौन सा अच्छा मुहूर्त है प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए। तो ये सभी चीजें बृहद संहिता में लिखी गई थी। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। सो वी शुड फील प्राउड दैट आवर एंसेस्टर्स वेर एक्सपर्ट इन वेरियस साइंसेस। मतलब इससे आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ हमारे जो एंसेस्टर्स थे साइंस में एक्सपर्ट थे, लेकिन कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट थे ऐसा नहीं है। दे वर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, दे वर एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, दे वर एक्सपर्ट इन मेटलर्जी, देन आफ्टर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन ऑल दोस फील्ड दे वर एक्सपर्ट्स। So here with that we are concluding the astronomy and astrology portion. So the last portion which is remaining, let us cover that वास्तु शास्त्र। ओके, वास्तु शास्त्र का मतलब आपको पता होगा, जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ओके, कोई भी हाउस हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, कुछ भी, इवन एनिमल्स को रहने के लिए जो प्लेसेस बनाते हैं, वो लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, ओके, बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, किचन कहाँ पर होना चाहिए, टेम्पल है अगर आपका, ओके, हाउस के अंदर, तो वो कहाँ पर होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन वास्तु शास्त्र। देयर इज एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तु शास्त्र। और सी, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी चीजें कई लोग इसको सिर्फ सुपरस्टिशियस बिलीफ मानते हैं, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास अभी ये डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, ऑफ द टॉपिक चला जाऊंगा फिर मैं, लेकिन ये सभी चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन है, ओके। हमारे वास्तुशास्त्र में से फॉर एग्जांपल ऐसा कहा गया कि जो गेट का एंट्रेंस होता है वो दक्षिण दिशा साधन साइड पर नहीं होना चाहिए, ओके। जो टेम्पल होता है, किचन होता है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जो टेम्पल से फॉर एग्जांपल एक और चीज है, टेम्पल अगर हो तो वो स्टेयरकेस के नीचे नहीं होना चाहिए।
तो कई लोग ऐसा बिलीव करते हैं ये सुपरटिशियस बिलीफ है। ये सभी सुपरटिशियस बिलीफ नहीं है, ऐसा हमने बनाया है इनको सुपरटिशियस। अदरवाइज हमारे जो एंसिस्टर्स थे उन्होंने बहुत ही सोच समझकर, साइंटिफिक रीजन था उसके पीछे, सभी चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन थे और सोच समझकर ये सभी चीजें इंक्लूड की है। ये सुपरटिशियस बिलीफ नहीं है, ये अभी हमको ऐसा अंधविश्वास ये सभी चीजें लगती है। अदरवाइज our Indian ancestors were so great that they were mentioned each and everything with scientific reasons behind that. Okay, scientific reason के साथ उन लोगों ने ये सभी चीजें मेंशन की हुई है। तो ऐसा मत समझना कि ये सभी चीजें बस ये अंधविश्वास है, सुपरटिशियस बिलीफ है। Okay, so there is an immense contribution in the field of वास्तु शास्त्र also. It is an inseparable part of astrology. एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ओके, कि प्लैनेट्स की मूवमेंट से ह्यूमंस को क्या अफेक्ट होगा। तो देखो अभी ये सभी चीजें मुझे डिस्कस नहीं करनी है, यहाँ पर काफी नॉलेजेबल लोग बैठे होंगे तो ये वीडियो देख रहे होंगे, ओके। तो जो स्टूडेंट्स है वो भी आर्ग्यू करने लगेंगे शायद कि सर होता है नहीं होता है। हाँ, कई सारी चीजें हैं जो अंधविश्वास है पूरी तरह से, लेकिन कई सारी चीजें ऐसे भी है जो रियली उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ओके, दे आर रियल। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से गलत नहीं है कि प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को अगर आप देखो, ओके, तो उससे कुछ ह्यूमंस पे अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ टोटली मैं एग्री भी नहीं करता हूँ, टोटली डिसएग्री भी नहीं करता हूँ। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था जो मैंने आपको बताया, थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था। ओके, इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड वास्तुशास्त्र किसका पार्ट है, तो it is an inseparable part of astrology only. Vastu Shastra of India is being recognized, dignified and praised by many countries of the world. Brahma, Narad, Brihaspati, Bhrigu, Vasisht, Vishwakarma have made an unique contribution in the field of Vastu Shastra. ये अंडरलाइन कर लेना आप। सप्तर्षि, सप्तऋषि कहा जाता है, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। एक और नाम जो है वो मैं भूल गया हूं यहाँ पर। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, they have equally contributed or they have immensely contributed in the field of the Vastu Shastra. They have propagated the principles of construction for dwellings, temple, palace, ashwashala means जहाँ पर horse को रखा जाता है, forts, storehouse of ammunitions means weapons, and the town planning मतलब ये सभी चीजें, temples जो है, palace है, forts है, storehouse of ammunitions, किस चीज को कैसे बनाना है उसकी कंप्लीट डिटेल्स उन लोगों ने मेंशन की थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तु शास्त्र इज मेंशन इन बृहत संहिता आल्सो, ओके। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस इन 15th सेंचुरी। तो ये चीज आप अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। ये जो कुछ भी चीजें यहाँ पर हाईलाइटेड है, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं मैं सभी चीजों में, भूल जाऊं तो आप समझ जाना कि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड। विश्वकर्मा इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स। He divided Vastu Shastra into 8 sections. Various informations of Vastu Shastra like selection of palace, shapes, structure, proper planning of things, same thing is repeated, okay. Temples, Brahmastan, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा आर मेंशन। तो ये सभी चीजें मेंशन की हुई थी, ओके, विश्वकर्मा ने, कि इन सभी चीजों को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। आप एज द टाइम पासेस बाय changes are taking place regarding the principles and understanding of Vastu Shastra. Now it is widely used being by the foreigners. यहाँ पर इंडिया में इंपॉर्टेंस कम हो गया है, फॉरेनर्स यूज कर रहे हैं वास्तु शास्त्र को ज्यादा, ओके। वहां पर एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है काफी सारी फॉरेन कंट्रीज में, वास्तु शास्त्र एज ए सब्जेक्ट आर्किटेक्ट्स को वास्तु शास्त्र एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस, इंडिया के लिए। यहाँ पर ऑप्शनल है, ओके, सभी चीजें। संस्कृत भी ऑप्शनल है हमारे यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में, और कई कंट्रीज में तो संस्कृत को एक मेन लैंग्वेज के रूप में रखा गया एज अ सब्जेक्ट। तो हम इंपॉर्टेंस भूलते जा रहे हैं और वो लोग यहाँ पर हमारी जो चीज है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद द कंक्लूजन। वास्तु शास्त्र वी हैव कंप्लीटेड। सो एट लास्ट कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है
इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, ओके और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही कॉम्पोजाइट कल्चर, इंडियन कल्चर इज वेरी कॉम्पोजाइट एंड वेराइड कल्चर। यहाँ पर कितनी सारी चीजें आप मतलब आप पाए, यहाँ पर कितनी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके सो इंडियन कल्चर इज हेट्रोजीनियस कल्चर, इट्स ए ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड रिलीजन दोनों को कंबाइन किया हुआ हमारा कल्चर है। See, ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world. Indian culture is very vast and heterogeneous. Heterogeneous culture means composite culture having different things. It is a blending of science and religion. As you underline, blending means mixing of science and religion, traditional idols and practical knowledge. So all these things are included in our Indian culture, which is rarely seen in the other countries of the world. Tolerance and equality towards all the religion is seen in our culture. ये अभी सिर्फ नाम का रह गया है, पढ़ने में अच्छा लगता है। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल द रिलीजियंस पहले था, अभी थोड़ा कम हो रहा है। नेवरदलेस स्टिल इट इज देयर इन इंडिया, so we should be proud about that. Tolerance and equality towards all the religion is seen in our culture. In spite of having diversity in the religion, lifestyle and values, we see unity in our country. जैसा कि हम 6th standard से पढ़ते आ रहे हैं, unity in diversity. Despite being a diversified nation, India is united. We should not forget that Indian culture reflects unique feature of unity in diversity. So here with that, we have concluded our chapter. Hope you all have enjoyed that, and soon okay we will start the another chapter, either from the probably from the history or economics, दोनों में से कोई एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। So till then, if you have any doubts you can ask me in the comment section, and if you are not having any doubts then it's cool, शायद अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा हो नहीं सकता वैसे तो, कोई बात नहीं। तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज स्टे होम, स्टे फिट, स्टे फाइन। आई एम साइनिंग ऑफ गाइस।